गुड इवनिंग एवरीवन, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस अस दिस इवनिंग। प्रभु हमें आशीष देवे शाम को जब हम इबादत करते हैं। एंड वी प्रे द लॉर्ड विल ब्लेस आवर लेंटन प्रेयर टाइम इन द इवनिंग एंड ब्लेस आवर टाइम इन आवर प्रेयर। वी विल फॉलो ऑर्डर सर्विस। हमारी इबादत की जो शाम की इबादत है, हमारी आराधना की बुक ऑफ वर्शिप पेज नंबर 11, वील फॉलो द ऑर्डर फ्रॉम पेज नंबर है। हिंदी की भी आराधना की जो पुस्तक है वो उसमें भी आप देखिएगा शाम की आराधना, आप उसमें टाइटल देखेंगे शाम की आराधना। The true glory of God is manifested in the humanity of Jesus. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon us. I am खड़े होकर प्रभु की महिमा गीत गाएंगे। Let us all stand, sing hymn number 263, Nearer My God to Thee.
Congregation, please be seated. We shall adore and praise God. Section number 2, page number 11. हिंदी के आराधना की पुस्तक सेक्शन 2 से हम अपनी विधि प्रार्थना की शुरू करेंगे. Worship the Lord in the beauty of holiness. Let my prayer be set forth in your sight as incense. Glory to the Father, our Creator. Glory to the Son, our Redeemer. Glory to the Spirit who sanctifies us. Holy, holy, holy Lord, God of power and might. Let us humbly confess our sins to Almighty God. अपने पापों का पश्चाताप करें और अंगीकार की दुआ हम एक साथ बोलें. Let us pray together. Most merciful God, we confess that we have sinned against you in thought and word and deed. We have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbor as ourselves. We ask you in your mercy to forgive that we have been, to amend what we are, to direct what we shall be, that we may delight in your will and walk in your ways through Jesus Christ our Lord. Amen. The Almighty and merciful God grant us pardon and remission of our sins, grace to amend our life, and the strength of the Holy Spirit. Amen. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. We shall all rise up. हम खड़े होंगे. भजन 99, Psalm 99, found in the Bible, page 500. The Lord reigns, let the people tremble. He sits enthroned upon the cherubims, let the earth quake. The Lord is great in Zion, is exalted above all the peoples. Let them praise your great and awesome name. Holy is he. The King is mighty in love justice. You have established equity. You have executed justice and righteousness in Jacob. Exalt the Lord our God. Worship at his footstool. Holy is he. Moses and Aaron went among his priests. Samuel also among those who call upon his name. They called to the Lord and he answered them. In the pillar of the cloud he spoke to them. They kept his testimonies and the statutes that he gave them. O Lord our God, you answered them. You were a forgiving God to them, an avenger of the wrongdoings. Let us all read together. Exalt the Lord our God and worship at his holy mountain, for the Lord our God is holy. The Old Testament reading is taken from the book of Exodus, chapter 33, verses 17 to 23. Exodus chapter 33, verses 17 to 23. And the Lord said to Moses, "This very thing that you have spoken I will do, for you have found favor in my sight, and I know you by name." Moses said, "Please show me your glory." And he said, "I will make all my goodness pass before you, and will proclaim before you my name, the Lord, and I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy." But he said,
You cannot see my face, for man shall not see me and live. And the Lord said, Behold, there is a place by me where you shall stand on the rock. And while my glory passes by, I will put you in a cleft by the rock, and I will cover you with my hand until I have passed by. Then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. This is the word of the Lord. Thanks be to God. मैं आपके सामने पढ़ूंगी निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 अध्याय 17 से लेकर के आखिर पद तक। निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 अध्याय 17 से लेकर के 23 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ को तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। The second reading is taken from 2 Corinthians chapter 4, verses 1 to 6. This is found on page number 965 in the Bible which is there on the pews. Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart, but we have renounced disgraceful, unhanded ways. We refuse to practice cunning or to tamper with God's word, but by the open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servant for Jesus' sake. For God, who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. This is the word of the God. Thanks be to God. मैं हिंदी बाइबल में से पढ़ूंगी। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 6 तक। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाब नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि
इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है बहुत सारी आशीषें दे। आमेन। आइए हम खड़े होकर हिंदी भजन गाएंगे, ज्योति से यीशु की, भजन नंबर 8। ज्योति से यीशु की, The gospel reading is taken from Gospel according to Luke,
chapter 9, beginning from verse 28, found on page 867. Page number 867. Let us all say together, "Glory to you, Christ Jesus." Now about 8 days after these sayings, he took with him Peter and John and James and went up on the mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his face was altered, and his clothing became dazzling white. And behold, 2 men were talking with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem. Now Peter and those who were with him were heavy with sleep. But when they became fully awake, they saw his glory and the 2 men who stood with him. And as the men were parting from him, Peter said to Jesus, "Master, is it good that we are here? Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." Not knowing what he said. As he was saying these things, a cloud came and overshadowed him, and they were afraid as they entered the cloud. And a voice came out of the cloud saying, "This is my son, my chosen one. Listen to him." When the voice had spoken, Jesus was found alone, and they kept silent and told no one in those days anything of what they had seen. This is the gospel of Christ. Praise to you, Lord Jesus. कलीसिया बैठ जाए प्लीज। आज हम परमेश्वर की पवित्रता की ओर ध्यान देते हैं और इस बात का स्मरण करते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता से ही हम पवित्र हुए हैं। एंड वी एक्नॉलेज बिकॉज गॉड इज होली सो वी आर होली। और क्योंकि वो पवित्र है और इसका स्वभाव ही पवित्र होने का है, इसी तरह हमको भी कहा गया है कि उसी के स्वभाव की तरह पवित्र बने रहो। पवित्रता का मतलब क्या है बाइबल में? What is holiness of God? और परमेश्वर की पवित्रता को और जब देखते हैं तो what is holy in God that we can also reflect that holiness in our lives? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो परमेश्वर जो कहता है पवित्र 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 हूँ, और उसका स्वभाव पवित्रता का हमारे जीवन से कोई संबंध है? Is there any connection of that holiness in our life? And that's is a very important question हम सबों के लिए, because we are sinners, God is holy. वचन कहता है जिस तरह मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। वो इस तरह बाइबल में इस तरह लिखा गया है। तो जब वो कहता है कि मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो, तो वो कैसे हो सकता है? God has never sinned. He is all omnipotent, omnipresent, omniscience. He is always there. But he also wants, his desire is that we also should be holy. और उस चीज़ को करने के लिए परमेश्वर जो है वो बहुत सी बातें बाइबल में बताई गई है कि परमेश्वर पवित्र कैसे है। हम एक चीज़ को देखते हैं बाइबल में पवित्रता की, वो पुराने नियम से ही पैसेज पढ़ा गया, पौलुस से भी बोलता है, यीशु मसीह ने भी बोला पवित्रता के ऊपर, भजन ने भी बोला, आई एम होली ऑन द माउंटेन, आई एम होली, होली इज ही, होली इज ही, 3 बार बोला भजन के अंदर, भजन 99 में, पवित्र मैं हूँ, पवित्र मैं हूँ, पवित्र मैं हूँ। द प्रोफेसीज हैज बीन स्पोकन इन प्रॉफिट आइज़ाया, होली 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 गॉड। और वो प्रोफेसी जो है प्रकाशित वाक्य में भी आ जाती है, पवित्र 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 परमेश्वर, जो था, जो है, जो रहेगा। So when these things are said about holiness, so what is holiness of God? बाइबल कहती है our God is holy because there is no holy God. जितने भी दूसरे देवी देवता हैं वो पवित्र नहीं हैं, and He is holy. Whom on the other gods are like our Lord. और दूसरे देवी देवताओं की तरह जितने भी हैं, हमारे परमेश्वर की तरह और कौन है? उनमें से कोई है?
The question has been raised always. परमेश्वर महान है अपनी पवित्रता में. हमारा जो परमेश्वर है, बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर महान है. Awesome in glory. उसकी महानता उसकी महिमा में प्रकट होती है. ग्लोरी का मतलब क्या होता है? महिमा का मतलब ग्लोरी होती जो बातें नहीं करती पर उतना कार्य करती है. क्या कार्य करती है? चांद, सूरज, चंद्रमा, मौसम, पृथ्वी, पेड़, पौधे, इस ब्रह्मांड की जितनी चीज़ें जो पृथ्वी में कार्य करें वो परमेश्वर की महिमा को प्रफुल्लित करती है, वो दर्शाती है. दैट रिवील्स द ग्लोरी ऑफ गॉड. हमारे कहने से थोड़ी ना बारिश होती है, वो तो उसकी इच्छा है बारिश करता है. उसकी इच्छा है अब गर्मी देनी है. सूरज कितना चमकना चाहिए, कितना चमक, तो परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर की महिमा है. चांद, सितारे, रात की रोशनी उसने दी है, उसकी महिमा है. पेड़ उग जाना, उसमें फल पौधे, गेट ऑल द थिंग्स इन द फ्रॉम द ट्री, उसकी महिमा है. पानी जो आता है परमेश्वर बरसाता है, मैं अपनी मर्जी बरसाता है. वो मैं का बरसाने से क्या होता है? ज़मीन से पौधा पैदा होती है. इट गिव्स, इट कल्टिवेट, द लैंड गेट कल्टिवेटेड, वी गेट फ्रूट, उससे हमें खाना मिलता है. हमारे कहने से नहीं होता, वो करता है. You never invented fruit. Mankind has never invented fruit or vegetables or anything. He gave it. वो परमेश्वर की क्या है? महिमा है. उसको किसी ने कहा नहीं है, वो अपने तरीके से. God works in His glory. That's why the book of Exodus, God says His glory is awesome. It's awesome. And work wonders. और बड़े अद्भुत वाले काम. तो परमेश्वर की पवित्रता जो है, it's awesome. It does wonders and it is majestic. हम उसको देख सकते हैं. मैग्नीफाई, मैजेस्टिक नहीं, मैग्नीफाई, मैग्नीफाइंग लेंस देखते हैं ना, हम क्लियरली देख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख सकते उसकी महिमा को. That is His glory. And that's why that psalmist also prophesies and did the great thing. People consider holy because He is a God of holiness in action. वो सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं बसा रहता, बल्कि अपना पवित्रता के कार्य करता है. One of the greatest work and holiness God did was He delivered people of Israel out of the Egypt. उसे मिस्र से उनको छुटकारा दिया. He gave it deliverance. Book of Leviticus says that He delivered them and therefore be holy because I am holy. क्योंकि उसने छुटकारा दिया. 430 साल बंदिश में रहने के बाद He delivered. इज़राइल तो गिड़गिड़ा कर रहे थे, छुड़ाने वाला कौन है? वो तो परमेश्वर था. उसने मूसा को तैयार किया और उसके जरिए काम शुरू हुआ. He made it a passage to make it happen. It is He who did that. छुटकारा दिया, दुश्मनों से छुटकारा देना. A holy God will always be a deliverer. अगर एक पवित्र परमेश्वर है जो है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर होता है. उसका एक one of its nature of holiness is to give deliverance. It's all because of His holiness that we get. ट्रांसफिगरेशन जो हुआ है, यानी उसका जो रूप परिवर्तित हुआ है पहाड़ पे, पीटर, जेम्स एंड जॉन के सामने, उसमें पवित्रता परमेश्वर की जो देखी गई है, वो महिमा कौन सी देखी गई है? पवित्रता का मतलब और भी है कि आने वाले में समय जो उसकी पवित्रता होगी वो कैसी होगी. एंड दैट शोज स्ट्रेंथ ऑफ लॉर्ड जीसस. वो लदी और गधू के बैठा हुआ गधी के बच्चे बैठ के नहीं आएगा सेकेंड टाइम. ही विल नॉट कम इन दैट वे. द पावर ऑफ गॉड विच शाइन्स. पावर ऑफ गॉड जो है, परमेश्वर के सामर्थ्य जो है, उसकी महिमा जो है, वो पवित्रता के ज्योति से चमकती है. जो ज्योति जो होगी वो पवित्र होगी. गॉड इज लाइट एंड हू शैल लिव इन लाइट शैल डार्कनेस शैल नॉट प्रिवेल ओवर यू. कहते हैं ना, वचन में कहा है परमेश्वर ज्योति है और अंधकार उस पर प्रभुता नहीं कर सकती. सो द पावर ऑफ होलीनेस, द पावर ऑफ लाइट शाइनिंग रिफ्लेक्ट गॉड्स होलीनेस. पीटर, जेम्स एंड जॉन को दिखाया, उनको बताया उसकी पवित्रता को. अब ये पवित्रता किन लोगों के बीच में होती है? सब वर्ग के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों, सबको परमेश्वर देता है. और उससे फ़ायदा ये होता है कि उसका एक मकसद होता है. एक तो सामर्थ्य देखी थी, एक पवित्रता का मकसद होता है. वॉट इज़ द पर्पस? क्या मकसद है? इब्रानियों 12:14 में क्या लिखा है? मेक एवरी एफर्ट टू लिव इन पीस विद ऑल मैन टू बी होली.
हर एक के साथ शालोम में बने रहो। पीस का मतलब क्या होता है? शालोम। शालोम का मतलब क्या है? गुडविल में बने रहो। बदले की भावना को, टिट फॉर टैट, नहले पे दैला, ये सिलसिले ना बना के रखो। अपने आप को ऊंचा दिखाने का सिलसिला मत दिखाओ। मत अपने आप को बड़ा दिखाओ कि हम बड़े हैं और तुम छोटे हो। मत दिखाओ कि हमें ज़्यादा मालूम है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ये जो बड़ापन जो है, होलीनेस जो है, ये बड़ेपन को नाश करता है, यानी अहम को, द प्राइड को। ही डिस्ट्रॉयज द प्राइड, एंड दैट्स व्हाट इट इज। दैट्स व्हाई बुक ऑफ हिब्रू से विदाउट होलीनेस, बताया अगर पवित्रता नहीं है, यू विल नॉट सी गॉड। दिखेगा ही नहीं, अंधकार सच्चा है। तभी पौलुस कह रहा है करंथे पर कि आज के ज़माने में लोगों के आगे अंधकार छा गया है। द डार्कनेस इज अपॉन देम, द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट इन लाइट शाइन्स विल बी ब्लाइंडिंग, दे विल नॉट बी एबल टू सी। वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अक्ल तो अंधी हो गई है, समझ भी अंधी हो गई है, जानने का तरीका ही अंधा हो गया है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं नजर आती। So book of Hebrews says that every effort to live in peace with all men to be holy. Without holiness no one will see the Lord. नहीं देखा। Hebrew chapter 12 verse 14. पवित्रता जो है हमें याद दिलाता है कि हम सब नाश होने वाले मनुष्य हैं। We are supposed to be destroyed because we have sinned. हमने पाप किया है। We are supposed to be destroyed. हम पापी हैं, हम पे सज़ा का दंड है, हमें सज़ा मिलनी चाहिए और हमको नाश हो जाना चाहिए। As for the Bible, this is the judgment from the Lord. But actually, there is a provision is made. एक तरीका बनाया गया है इस चीज़ से बचने का परमेश्वर बाइबल से, क्योंकि हम विधियों के अनुसार चलेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। You know, if we go by the law, you and I are supposed to be dead and destroyed. Since everything is destroyed, वचन कहता है, तो किस प्रकार के लोग होने चाहिए हमको? जब हम पे जब सजाई है, हमें मरना है, हम पे सज़ा मिलेगी, हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, एंड वी विल बी डिस्ट्रॉयड पीपल ऑफ गॉड, तो हम किस तरह से रहें? द बाइबल सेज, फर्स्ट 2 Peter chapter 3 and verse 1, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी शुड बी। हमें कैसे होना चाहिए? फिर जब सज़ा है तो सज़ा है, तो देयर इज़ अ वे आउट। द पीटर इन हिज लेटर गिव्स दिस, व्हाट अ वे आउट ही गिव्स। You ought to live holy and godly lives. धार्मिक, परमेश्वर में कि धार्मिकता में एंड पवित्रता में रहना को आया गया। गॉडली, परमेश्वर के प्रति वाला जीवन, परमेश्वर के पक्ष का जीवन, परमेश्वर के आधार का जीवन, हमारे विचारों में, हमारे फैसलों में, हमारी सोचें परमेश्वर के पक्ष का होने वाला जीवन। यानी आपके फैसले जो हैं परमेश्वर के पक्ष पे होने नजर आते चाहिए, आपके पक्ष में और आपके स्वार्थी पक्ष में नहीं होने चाहिए। दैट इज़ नॉट अलाउड। सो लीड ए गॉडली लाइफ सो दैट योर रिजल्ट विल शो योर होलीनेस। परमेश्वर की पवित्रता की ओर दर्शाता है कि कितनी सामर्थ्य है, कितना हमें दुश्मनों से बचा के रखता है, और कितना उसके धार्मिकता से हमारे रोज़ के कामों में क्या देता है? बढ़ावा देता है। वो काम में बढ़ता हुआ नजर आएगा। You know, this part of the holiness of life dwells upon the people. हम लोगों के बीच में उसका अजीज़ो आधार चलता है। उसकी महिमा करो। Exalt the Lord का मतलब क्या होता है? उसको ऊंचे पे उठाओ, सारी चीज़ों से भी ऊंचे पे उठाओ। Lift the name high, holy, above all gods, above all statues. हर परिस्थितियों से उसका नाम श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे पे रखो जी। तभी तो मैं कहता हूँ हमेशा कि अल्टीमेट है हमारा ये, फ्री चर्च फर्स्ट। पहले फ्री चर्च रखिएगा अपने सामाजिक जीवन में, जो हमारी फ्री चर्च कम्युनिटी साथ रहती है। कीप द फ्री चर्च फर्स्ट एंड यू एज सेकेंड। जहां आपने अपने आप को फ्री चर्च ऊपर किया, नाश होने का जीवन शुरू हो जाएगा, बर्बादी का जीवन होना शुरू हो जाएगा, स्वार्थी जीवन शुरू हो जाएगा, पवित्रता का जीवन तो नजर ही नहीं आएगा। Because you see, we don't keep God first. The priority of keeping God and godliness in our life first is the part of holiness, is a part of shalom. वो एक हिस्सा है शालोम का, गुडविल का। एक परमेश्वर हर एक के लिए अच्छा ही चाहता है, वो बुरा नहीं चाहता। आप उसको सबसे सप्रिय रखेंगे, the top priority, God will add you good things in your life. Though how many challenges come in your life.
चाहे कितने भी आ जाए, कितनी भी आपको परिस्थितियों से निकलना पड़ेगा, पर परमेश्वर आपको बनाए रखेगा. He will hold you, He will love you, He will trust you, and you should be a trustworthy person to the Lord. परमेश्वर के आधार पे भरोसा योग्य बनिए ना अपने काम काज में, ये बहुत ज़रूरी है. अभी हम ऑफिस में काम कर रहे थे, क्रिस्टीना थी तेरे साथ, किसी चर्च मेंबर ने बोलते मेरी शादी हो रही है, मेरे को मेंबरशिप का लेटर दे दीजिएगा. मैंने कहा ठीक है दे दे. जैसे वो शादी करने वाला इतनी बदतमीजी से बोला, गलत बात, गलत शब्द यूज़ किया उसने हिंदी में बोला तुम, क्योंकि हमने बोला चंदा पूरा कर लीजिएगा, आपका चंदा पिछले 5 साल से नहीं है, आपने क्लियर नहीं किया है, और ज़ुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो बदतमीजी और गलत तरीके से बोले. तो हमने उनको ताड़ना दी ज़ोर से फ़ोन पे. उस टाइम मैं मीटिंग में था सीनेट ऑफिस में, तब आया था, तब पता लगा, तो मैंने उसको बोला फ़ोन पे, मैंने कहा ऐसे चर्च में लोगों से बात नहीं की जाती है. यू डोंट टॉक टू द ऑफिस पीपल लाइक दिस, स्पेशली टू अ लेडी. मैंने कहा यू विल बी क्वेश्चनड. मैंने कहा जेल में बंद करा दूंगा. मैंने ऐसे उसको थ्रेट किया. ऐसे लेडीज़ के साथ बदतमीजी से बात करी तो डोंट टॉक लाइक दिस. लर्न टू हैव ए कर्टसी, टॉकिंग जेंटली. लोग चीज़ें जो है ना अपने वश में करके क्या होता है, परमेश्वर की चीज़ों को भूल जाते हैं. एंड दैट्स व्हाट इट इज़. टुडे स्क्रिप्चर इज प्लीज डोंट लेट योर इनर बीइंग गो अवे फ्रॉम द. उपवास का मतलब क्या है? वन ऑफ द क्वालिटीज of fasting is humbling before the Lord. Humble experiences holiness, goodwill, peace, His love, His deliverer. वो आपको कैसे clutches of शैतान के पंजों से कैसे छुटकारा देता है. It may be your own people, it may be a stranger. आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके खुद के हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस कोलीग हो सकते हैं. The clutches of Satan is always like that. आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. आपके बीच में दरार पैदा करने के लिए बड़े लोग खड़े हो जाते हैं. यू शुड नॉट बिकम लाइक दैम. उनकी तरह नहीं होना चाहिए. अपनी खुद आइडेंटिटी परमेश्वर के साथ उससे कम होने ना दें. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. डोंट लेट योर आइडेंटिटी बिकम लोअर बिकॉज ऑफ अदर्स. उस आइडेंटिटी को बिल्ड इट अप. गॉड हैज गिवन यू फ्रीडम, करो ना, उसके साथ बनाए रखें. सो वी थैंक द लॉर्ड फॉर दिस मूवमेंट विद दीज वर्ड्स. हु विल नॉट फियर यू ओ लॉर्ड एंड ब्रिंग ग्लोरी टू योर नेम. हु विल नॉट. आखिर में यही कहूँगा, प्रकाशक कहता है कौन आपको महिमा नहीं देगा, कौन है जो जन आपको महिमा नहीं देगा. फॉर यू अलोन आर होली, क्योंकि पवित्र सिर्फ आप ही हैं. Revelation chapter 15 verse 4. All nations will come and worship before you, for your righteousness act have revealed. आपके धार्मिकता के जो एक्शन है उन्होंने प्रदर्शित कर दिया, उसे बता दिया है. आपके काम उन्हें बता दे कि आप कौन है, पवित्र, और आपकी तरह कोई पवित्र है ही नहीं. That's why Peter says, be holy because I am holy. Be holy because I am holy. 1 Peter chapter 1 verse 16. Let's attempt it. Let's move ahead. ये तो तभी होता है जब हम आपको दीन और नम्र करते हैं, और ये उपवास के दिन है. ऐसा करेंगे तो परमेश्वर इस रास्ते के जो बहुत सी चीज़ें देखते हैं उपवास में, एक ये भी तरीका है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि लड़ के दुआ ना करें परमेश्वर से, गुस्से से दुआ ना करें. मेरा काम नहीं हो रहा तो लड़नी शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, तमाशा करना शुरू कर दिया, चर्च से अलग हो गए, लोगों से अलग हुए. ऐसे नहीं होता है. नहीं हो रहा काम, परमेश्वर की मर्जी है. देयर इज हिज विल. ही वांट्स अस टू मेक इट हैपन एंड ही वुड लाइक अस. जीसस सेड, आई एम होली फॉर यू आर होली. लेट्स प्रे. आइए दुआ करें. थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वर्ड. आपके वचन के हम धन्यवाद देते हैं. हर एक को अपने पवित्र साय में बनाए रखें परमेश्वर, अपनी इच्छा में बनाए रखें, और होने पाए परमेश्वर की आपकी पवित्र मर्जी हर एक के ऊपर पूरी होवे. इन रोज़ों के दिनों में लॉर्ड, इन टाइम ऑफ दिस लेंट फास्टिंग, इट्स नॉट ओनली फास्टिंग ऑफ द फूड, बट इट्स अ टाइम टू
हम्बल ourselves, अपने आप को दीन और नम्र करें, आपकी पवित्रता की ओर आदर से रहें, एक दूसरे का आदर करें, परमेश्वर का आदर करें, उसकी महिमा को अनुभव करें, क्योंकि परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है हमारे लिए. He is doing every work for us. Let us perceive it, let us see it, and let us experience it in these days in our life. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's rise up and sing hymn number 235, Dear Lord and Father of Mankind. Affirm our faith by reciting the Apostles' Creed. Page 14, let us all say together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and a life everlasting. Amen. Please be seated. इस समय हम दुआ में जाएंगे. Lord, we want to thank you
for this evening as we pray to you. आज शाम के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम दुआ में जाते हैं. Lord, help us to perceive your holiness in our life. Help us to see your holiness, experience your holiness in our. प्रभु जी आपकी पवित्रता को जो आप पवित्र हैं अपने जीवन में अनुभव करें ताकि हम श्वेत किए जाएं, अपने पापों से साफ किए जाएं रोज़ बर रोज़, हर क्षण हर समय. And we pray that every moment of our life would be a cleansing moment of our life. This is the battle, Lord. May we not forget your word, your prayer. हम आपके वचन को ना भूलें, आपके उन शब्दों को ना भूलें जो हमें याद दिलाते हैं रोज़ बर रोज़. Help us, Lord. Ample of evidence you have given. वचन से बहुत सारे तरीके से आपने बताएं. And Lord, you have shown yourself to your people. To Moses you have shown. And we've seen that Jesus and beheld his glory. हमने परमेश्वर को देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा और उस महिमा को प्रकट होते हुए देखा. उसका धन्यवाद देते हैं. Lord, we pray that you bless this evening in our prayers as we pray for our church. We thank you for the repair work that has started. प्रभु जी सारे रिपेयर के काम शुरू हो गए हैं. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Lord, you made it happen, Lord. And Lord, we pray that you'll bring it to completion, Lord, as the work has started. एक एक काम को आप पूरा अंजाम दीजिएगा परमेश्वर. सारे रिपेयर सब ठीक हो सके. यह आपकी महिमा के लिए जगह है, आपकी प्रार्थना के लिए. Lord, this is the place for worship. Here we don't do anything else except worship you. और आपकी जहाँ आराधना की जाती है परमेश्वर, वहाँ पर आपका आत्मा वास करता है. Where we worship, Lord, your spirit dwells there with us. And we want to thank you, Lord Jesus. Bless every worker, everything, Lord, especially Rohit Dean as he anchors, as he handles this. Pastor committee करती है, साथ मिलके मदद करती है. Lord, bless them. Bless their work over here as they monitor and get things done, Lord. Thank you. Thank you for the donations that we have received. We look for the donation received further for completion of the work. Lord, you open the door. प्रभु जी आप दरवाज़ा खोलते हैं, हर इंतज़ाम को पूरा करते हैं. Thank you. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं. आपने हमें विजन दिया, आपने हमने प्रभु जी कार्य करने का. जाओ प्रचार करो, परमेश्वर की महिमा करो. जाओ काम करो, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाओ. शिक्षा दो, टीच, प्रीच, एवेंजलाइज योर वर्ड. यस लॉर्ड. प्रभु जी आपने एक स्थान देने का फैसला किया और उसमें आपने कार्य में बढ़ाया है परमेश्वर. प्रभु जी उसके लिए जब धनराशि जमा कर रहे हैं एक नए चर्च के निर्माण के लिए, अपनी 100वीं सालगिरह जो आने वाली है, प्रभु जी वो ज़मीन जो मिलती है प्रभु जी, वहाँ आपकी महिमा उसको अभिषेक किया जाए, उससे अलग कर दिया जाए परमेश्वर आपकी महिमा के लिए. धन्यवाद 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 परमेश्वर. And we just pray, Lord, that you make it a blessing to the people for their contribution and all they do, Lord. And all who are contributing every week, family by family. We praise you. We thank you. It's all by grace, your love. It's all your glory that is seen around. धन्यवाद आपकी महिमा के लिए, आपके कार्यों के लिए. प्रभु जी जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में, उनके लिए दुआ करता हैं, उन्हें चंगाई दें. सचमुच प्रभु यीशु मसीह विनीता चरण के लिए दुआ करते, उनकी माँ के लिए, उनकी बहन के लिए अपनी चंगाई शिफा बड़ा हाथ बनाए रखे. तिलक फर्नांडे के लिए जो अभी भी कोमा में है प्रभु जी, उनके बेटों के लिए, उनकी माँ के लिए जो सेवा करते हैं. शांति देवदास के लिए जो स्टिल इज गोइंग ऑन डायलिसिस, लॉर्ड. यस लॉर्ड, वी प्रे दैट यू विल हील ऑल ऑफ देम एंड मेनी मोर, लॉर्ड. वी प्रे दैट यू विल हील एंड टच देम. प्रभु जी उनके पवित्र आत्मा से उनके हाथ छुएं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें. प्रेरणा के लिए दुआ करते हैं. अपने फैमिली को देखती है, अपने कज़न्स को, अपने पिताजी को, वहाँ सब चीज़ों को देखती है परमेश्वर. उनको बीमारी तकलीफ में है प्रभु जी, उन्हें चंगाई मिले. जब वो सेवाएं करती है, शी डज हेल्प एंड टेक केयर ऑफ देम. आई आस्क यू टू हील देम. यू आर द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल, मेकिंग थिंग्स पॉसिबल. थैंक यू लॉर्ड. वी कम एट दिस टाइम and each one of us into mighty hand with these prayers. Pray for all the church members जो इन उपवास के दिनों में प्रार्थनाएं करते हैं घर घर में. Pray for our prayer meetings that are happening in most of the churches members would like to have. Pray for Reverend Ashish Jacob, myself, Anurag Smith and Ashish Samuel जो वो जाते हैं, प्रार्थनाएं लेते हैं जगह जगह. प्रभु जी आशीष में करें. इन सब की दुआओं के ज़रिए सबके घर में आशीष होवे. Bless them, Lord, and our coming days as we go for prayer different places, make it a blessing to us. वो आशीष में समय बने प्रभु यीशु मसीह. थैंक यू लॉर्ड जीसस इस समय के लिए, अपनी प्रार्थना का समय देने के लिए कि हम आपकी ओर निहारें और देखें. लॉर्ड हेल्प अस टू सीक यू, गेज अपॉन यू लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ योर होलीनेस. थैंक यू.
Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let us turn to section 15, page 15. O Lord, show your mercy towards us. Clothe your ministers with righteousness. O Lord, save your people. O Lord, be gracious to our country. O Lord, guide our rulers. Give peace to the world, O Lord. O Lord, make us mindful of all in trouble and distress. O God, send your Holy Spirit upon us. Let us pray. Almighty and everlasting God, you hate those nothing that you have made, but forgive the sins of all those who are penitent. Create in us a new and contrite heart, so that sorrowing of our sins and acknowledging our weakness, we may receive from you, the God of all mercy, perfect pardon and peace. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. भाई खादर मतलब खुदा और अज़ली खुदा तूने अपने किसी मखलूक से नफ़रत नहीं रखता और सो तौबा करने वालों को गुनाह बख्शा है। हमें नए और शिकस्त दिल पैदा कर कि हम अपने गुनाहों के लायक अफसोस करके और अपनी खास हाली को मानकर तुझसे जो सारी रहमतों का खुदा है पूरी माफ़ी हासिल करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। O God our Father, of whom the whole earth, the heaven adores, let all mankind worship you, all nations obey you, all tongue confess you, and all people love and serve you, and find their peace in you, through Jesus Christ our Lord. Amen. We shall all rise up and sing our closing hymn, What a Friend We Have in Jesus, and during singing of this hymn, offertory will be taken.
Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among us and remain with us now and forever. Go in peace to love and serve the Lord in the name of Christ.